morning, everyone. Rahul Taneja sir, Dr. V. Vikram sir, Dinesh sir, Sudhir sir, Aman ma'am, Shubhra ma'am, and Shubh ma'am and Aman sir. So please come in front of stage. And Technology, Government of Haryana, Panchkula. He has holds postbachelor degree including Doctor of Philosophy, PhD in Pharmaceutical Science, Master of Business Administration, Postgraduate Diploma in Accelerator Property Rights and Patent Practice, Master Trainer of European Patent Office and World Intellectual Property Organization and Postgraduate Diploma in Drug Regulatory Affairs and Clinical Trials. He has 40 journals publications on various IPR issues and conduct besides articles in various newspapers and newsletters. Now, this time I would like to call Dr. V. Vikram sir, Atlas School of Pharmaceutical Sciences Department, City University, to welcome our honorable guest. Welcome, Dr. Rahul Taneja. Thank you, sir. 2 or 3 days back, I called to Dr. Rahul Taneja, sir, please visit our institute, please visit our university. He is a mobile person, basically. Today morning, he is in City University, evening at one another place, and tomorrow, I think so, one another institution. Sir name is published in Indian Book Record as a maximum delivery the lectures. 250 plus lectures? 400 plus. 400 plus lectures are already. Sir has done 3 masters, M.Pharm, MBA, IPR, then done PhD in pharmaceutical sciences, and we are so lucky. A pharmacy background का person has name and fame in this market, that is IPR. So, sir, I, Dr. V. Vikram, head of the department, Pharmaceutical Sciences School, welcome to you in this City University. So, dear students, IPR are the cornerstone for innovators, including for innovators in the pharmaceutical sectors. Dr. Taneja is scientist with prestigious department, that is Department of DST, and he has important role in IPR for generation, execute for fresh idea in pharmaceutical sciences, and his contribution is invaluable in helping pharmacy students. So that's why we are inviting Professor Taneja in our university. So sir, with this word, I would like to welcome Dr. Rahul Taneja for his lecture. So welcome sir. Thank you so much, sir. Respected
Principal Sir, Dr. Veer Vikram Sir, Dr. Sudhir, faculty members and dear students. First of all, thanks for inviting me to deliver the lecture on intellectual property rights. Being a Punjabi, I thought I can deliver a talk in Punjabi, but I saw there are many international students also there, so I will try to speak in English also. But don't worry, I think you can learn every small parts of intellectual property rights in a very simple language. I hope you already listened so many talks on IPR, but the main focus is how to generate an idea and to convert into intellectual property rights. This is the main agenda of this talk. I am not here to just spend 1.5 hours to deliver a lecture like to just read a slides. I am here to share my experience generally, what I have learned in my life in intellectual property rights. Intellectual means creation of human mind. प्रॉपर्टी जो आपकी अपनी होती है, राइट्स जिस पे आपको अधिकार मिलते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. देयर आर टू टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, टेंजिबल प्रॉपर्टीज एंड इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज. टेंजिबल प्रॉपर्टीज आपके पास अपनी गाड़ी है, बंगला है, मकान है. यू हैव सम स्पेसिफिक राइट्स. आप अपनी मर्जी से उसे बेच भी सकते हैं, किराए पे भी दे सकते हैं, इवन यू कैन डिस्ट्रॉय देम. यू हैव फुल राइट्स ऑन योर टेंजिबल प्रॉपर्टी. आपके पास अपनी व्हीकल है, आपके पास फुल राइट्स है. Do you have full rights on your vehicle? Yes, please stand up. Yes, आपने yes करना. Student, please stand up. Do you have full rights on your vehicle? आपने बड़ी जोर की कहा yes. Do you have full rights? तो आप रेड लाइट पे गाड़ी के रोकते हो, बट व्हीकल तो आपका है. चला सकते हैं, ठीक है. You have a 2 wheelers, तो आप उस पर 3 लोगों को बिठा सकते हैं. Why? व्हीकल आपका अपना. you said that you have full rights. You don't have full rights. You have fundamental rights. You don't have absolute rights. मेरे गाइड कहते हैं कि आपको बुलाना खतरनाक हो जाता है, आप हमारी चीजों को भी हमारा नहीं कहते. But that is a true. You have a absolute right. You don't have a absolute rights. You have a fundamental rights. Right, sit down. आपके पास अपना हाउस है, आपके पास फुल राइट्स हैं. Do you have full rights on your house? Yes or no? अब सब नो करें. Because you don't have full rights. मान लीजिए आपने रेजिडेंशियल एरिया में प्रॉपर्टी खरीदी, आप वहां पर कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते. You can't do any type of commercial activity on your residential property. और अगर आपने पुडा गवर्नमेंट में मकान खरीदा तो आपको स्पेस छोड़ना पड़ेगा. आप ये नहीं कह सकते कि मैं आगे से मकान बनाऊंगा. You have to follow the government rules to use that property. और मान लीजिए पंजाब गवर्नमेंट का मन किया वहां से रोड निकालनी है, तो आपको अपना हाउस सरकार को भी देना पड़ सकता है. इट मींस यू डोंट हैव एब्सोल्यूट राइट्स ऑन योर प्रॉपर्टी. यू हैव फंडामेंटल राइट्स टू यूज दैट प्रॉपर्टी. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट आपके पास अपना व्हीकल है. व्हाट प्रूफ यू हैव दिस व्हीकल इज योर्स? व्हाट प्रूफ यू हैव? आपके पास अपना व्हीकल होता है, आपके पास क्या प्रूफ होता है? आरसी. आपके पास हाउस है, क्या प्रूफ होता है? हाउस इज योर्स. रजिस्ट्री. एक चाइल्ड का बर्थ होता है, क्या प्रूफ होता है? चाइल्ड हमारा है. कभी आपने सोचा जो चाइल्ड का बर्थ हुआ इसकी रजिस्ट्री करा लेते हैं, इसकी आरसी करा लेते हैं. दैट इज नॉट प्रोटेक्टिव. इसके ऊपर नंबर प्लेट लगा लेते हैं, बच्चा हॉस्पिटल में गुम ना हो जाए. इज इट पॉसिबल? व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? Because every property has their own subject matter. In our country, India, most of the people doesn't know the meaning in the difference between patent, trademark, industrial design. इतने सारे लालों से मिलता हूं मैं जो इंडस्ट्री चलाते हैं, MSMEs. सर हमारे नाम का पेटेंट करा दो. नाम का कभी भी पेटेंट नहीं होता. It can be protected by only trademark protection. Understand? Means every invention, every content have their own subject matter. You can't correlate to each other with anyone. Next slide. Similarly, we have intangible assets. हमारी thought, हमारी creativity. Some are scientists, some are painters, some are musicians, some are technocrats. कोई poem लिख रहा है, कोई कविता लिख रहा है, कोई गाना गा रहा है. Sometime we can protect everything. आप मेरे पास ले आओ कि सर मुझे अपने माइंड की इस आइडिया को प्रोटेक्ट करना है. I can protect anyhow with any module of intellectual property right. Next slide. There are 7 different types of intellectual property rights.
patent, trademark, industrial designs, geographical indications, trade secrets, protection of new plant varieties, and copyright related rights. Means every invention, every subject matter is different. जिसका पेटेंट होगा उसका कॉपीराइट नहीं होगा, जिसका कॉपीराइट होगा उसका डिजाइन नहीं हो सकता. मींस आप हर एक को आपस में मिक्स नहीं कर सकते. After my session, every student must know the difference between patent, trademark, industrial designs, and geographical indication. I hope you will understand, because you have to understand the basic concept of the intellectual property right. Next slide. Government of India has launched National IPR policy in 2016 with the title Creative India, Innovative India, Rachnatmak Bharat, Abhinav Bharat. Next slide. To motivate the student to generation of the intellectual property right, to creation human capital developments, all the agenda related to intellectual property rights is covered into the National IPR policy. Next slide. Next. 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 Now we will talk about the patent. आपने कभी वर्ड सुना पेटेंट? व्हाट इज पेटेंट? एनीवन? Do you have any patented device right now? Do you have any patented device right now? Yes or no? Yes or no? Yes. This is a patented device. Okay. So what is patent? Next slide. Patent is an exclusive rights granted for an invention. Granted for an only and only for the invention, not for the innovation. What is the difference between invention, innovation and discovery? Yes, anyone? What is the difference between invention, innovation and discovery? Yes, yes please. Sir, invention is like when we discover or produce a thing, we invent a new thing, and innovation is to enhance it or to remodify it to produce better results. Efficacy is increased. Okay, and discovery? Discovery leads to like a chemical structure. No. Yes, like say chemical structure, right? Please proceed. Like analysis we did, we already have all. Why so much typical? In simple language. Discovery means to find a new thing. मैं माउंट एवरेस्ट पे गया, मुझे वहां पे एक पेड़ मिला और मैं ही पहला व्यक्ति ऐसा हूं जिसने वो पेड़ देखा. That is called discovery. Okay? Which is already exist in the nature. But we found it. ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था लेकिन उसने उसको ढूंढ लिया एक्सीडेंटली? यस, अंडरस्टैंड? लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोऑर्गेनिजम्स, आपने उसके ऊपर रिसर्च करी और आपने इन्वेंशन लाई, दैट थिंग कैन बी फाइल फॉर द पेटेंट एप्लीकेशन. अंडरस्टैंड? विच इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द नेचर कैन नॉट बी फाइल फॉर द पेटेंट एप्लीकेशन. वेरी गुड. एंड व्हाट इज इनोवेशन? आपने उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर दी, बट एज पर द इंडियन पेटेंट एक्ट मॉडिफिकेशन इज नॉट एक्सेप्टेबल. ओनली इन्वेंशन इज acceptable. Is it clear? You will get a monopoly rights. हिंदी में मैं इसको मानता हूं पेटेंट नहीं कहते, हम इसे वरदान कहते हैं. वरदान क्या होता है? What is वरदान? Yes, anyone? महाभारत देखी आपने कोरोना टाइम में? Have you seen महाभारत एंड रामायण? एक व्यक्ति था रामायण के अंदर जिसका विमान चलता था. कौन था? कौन था? रावण. तो राम जी के पास क्यों नहीं था? बिकॉज उसके पास क्या था? उसके पास टेक्नोलॉजी थी और उसके पास उसका पेटेंट था. एंड वन इज द अनदर पर्सन इन महाभारत जो बैठे बैठे बता रहा था कि वहां पर युद्ध हो रहा है. दैट टाइम ऑफ सीसीटीवी. कौन था वो? संजय. पर्सनली आई बिलीव दैट इज ऑल्सो ए टेक्नोलॉजी, बट वी डोंट हैव ए लिटरेचर. And we said that this is a vardhan. If you can thought about it. And nowadays you will get a rights. उनको ये वरदान क्यों मिलते थे? तपस्या के लिए, for some kind of research, for some kind of meditation. But you have done some time of meditation and research on your research papers. You will get a patent right from Government of India
for 20 years. Next slide. आप मुझे दे दीजिए स्लाइडर प्लीज. Okay. You will get a rights for 20 years from the date of the filing. Nobody can use your invention without your permission. Nobody can sell your invention without your permission. Nobody can give your invention without your permission. You will get a monopoly rights for 20 years. Understand? What about after 20 years? 20 साल के बाद क्या हुआ? Yes, anyone? जो ये कोट पहना हुआ ना हमने, ये भी पेटेंट था किसी टाइम में. ये शूज भी पेटेंट थे. एवरीथिंग इज पेटेंटेड. सबसे पहला पेटेंट कौन सी ईयर में फाइल किया होगा? यू हैव एनी आइडिया? नॉट इन इंडिया, इंटरनेशनली 1500 समथिंग ईयर्स में फर्स्ट पेटेंट एप्लीकेशन फाइल की गई थी. और हम लोग कितने पीछे हैं? 600 साल. एंड आप लोगों को क्या पढ़ाया जाता है? ज्ञान बांटने से. लेकिन मैं कह रहा हूं ज्ञान मत बांटो. डोंट डिस्ट्रीब्यूट योर नॉलेज एट फ्री ऑफ कॉस्ट. यू हैव टू प्रोटेक्ट योर नॉलेज. आफ्टर दैट यू कैन डिस्ट्रीब्यूट एट फ्री ऑफ कॉस्ट और एट सम पॉइंट. मैं पढ़ रहा था फेसबुक पर लिखा, ये बहुत महान वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपनी रिसर्च को पेटेंट नहीं करवाया और फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. कहा है क्या महान वैज्ञानिक? अगर आपने प्रोटेक्ट किया होता तो आप उसको लमसम अमाउंट पे सेल कर सकते थे और जो हायर क्लास थे उससे आप रॉयल्टी ले सकते थे. अगर आप पेटेंट नहीं कराएंगे, somebody can else file your invention as a patent application. Understand? Next slide. What is the criteria of patentability? How you can check this is a patentable or not? What is the criteria? This is a very simple step to understand this is a patentable or not. अगर आपको पेटेंट एक्ट समझना है तो आपको 3 पैरामीटर हमेशा पता होना चाहिए. नोवेल्टी, नॉन ऑब्वियसनेस एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी. Next slide. Novelty means, next slide. Next. Novelty means that thing cannot be published anywhere in the world. Means जिस चीज का पेटेंट फाइल करने जा रहे हैं वो कहीं पर भी पढ़ी लिखी देखी सुनाई नहीं जानी चाहिए बिफोर द फाइलिंग ऑफ द पेटेंट एप्लीकेशन. If it is already published in anywhere in the world, then your patent will not be granted. Not in the world. I am talking about world, not India. If you are going to file a patent application in India, it means that invention, that concept cannot be filed in anywhere in the world. Understand? Next slide. Your invention must have inventive step or technical solution approach or economical significance or both. But that must be non-obvious in nature. Non-obvious क्या होता है? इसको मैं ऊपर से नीचे करूंगा तो नीचे गिर जाएगा कि ऊपर जाएगा? गिरेगा. Are you sure? मेरे हिसाब से ऊपर जाएगा. चेक कर ले. यस सर. नीचे गिरेगा ड्यू टू ग्रेविटी. एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा था, क्या गिर गया? मैंने तो कहा नहीं कि सेब के पेड़ के नीचे बैठा था. मैंने तो आपको कहा नहीं कि सेब के पेड़ के नीचे बैठा था. तो आपने ये क्यों बोला कि सेब ही गिरा पेड़ के नीचे बैठ के? संतरा भी गिर सकता था. आप लोगों ने क्यों सोचा कि सेब ही गिरता पेड़ के नीचे बैठ के? ड्यू टू दैट पर्सन. किसने पढ़ाया आपको? न्यूटन. न्यूटन ने कह दिया कि नीचे गिरने से सेब गिरता है, तो उसके बैठने से गिरेगा. आप बैठोगे तब नहीं गिरेगा? गिरेगा ना. सो दिस इज ए थ्योरी. अंडरस्टैंड? दिस इज ए थ्योरी एंड थ्योरी एज सच कैन नॉट बी फाइल फॉर द पेटेंट एप्लीकेशन. अंडरस्टैंड? और जब पेड़ के नीचे बैठो तो भगवान से कृपा करो कुछ भी ना गिरे. डोंट से लाइक दैट कि सेब गिर गया. अंडरस्टैंड? सो दिस इज नॉट एन इन्वेंशन. अंडरस्टैंड? दिस इज ए थ्योरी. थ्योरी इज ए term because this is not an invention, so as such we cannot file for the patent application. Next slide. Industrial applicability. That invention must be used for some industrial use. Can you let me know, आप कोई ऐसी इन्वेंशन को जानते हो जो इन्वेंशन तो है लेकिन उसकी इंडस्ट्रियल यूज नहीं है? क्या ऐसी कोई इन्वेंशन होती है जिसकी इंडस्ट्रियल यूज ना हो? यस? क्या कोई ऐसा आविष्कार होता है, ऐसी इन्वेंशन होती है जिसका इंडस्ट्रियल यूज ना हो? विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेड और यूज्ड इन एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री? यस.
लेट मी नो एनी रिसर्च कि जो हमारी सोसाइटी के लिए भी हार्मफुल हो, ऐसी रिसर्च, उसका पेटेंट नहीं मिलता. गिव मी एग्जांपल. अभी तो आप गुजरे उससे, कोविड. आप कहो कि मैंने एक ऐसा वायरस बनाया 50% पॉपुलेशन खत्म. दिस इज एन इन्वेंशन. पॉपुलेशन रिड्यूस करने का मेथड है ये. कैन वी गेट ए पेटेंट एप्लीकेशन? वाई? बिकॉज गवर्नमेंट इतने प्लान कर रही है पॉपुलेशन रिड्यूस करने के. दिस इज अ गुड मेथड, बट दिस इज अगेंस्ट आवर morality and system. Such type of things cannot be filed for the patent application. Understand? Atomic bomb. आपको मैंने ऐसा एटॉमिक बम बनाया है, परमाणु बम बनाया है, इसको आप लगा के देखो कहीं पर, सारी कंट्री फिनिश. अंडरस्टैंड? Such type of invention cannot be filed for the patent application. Next slide. Now this is a very simple things because we can start from scratch. Now you can see there is a one simple wire and you have to sharp from the front side and from the back side you have to just bend it. This is called oil pin. In another slides आपने क्या किया, just you make a hole and that needle is used in the sieving machine from the front side, and from the another side you have just make the hole at the back side. Now this needle is used for the sieving machine, but not for the sieving machine. This is used for the hand sieving. So just changing the position of the hole, can we get a patent application? Yes or no? By just changing a hole position, yes, we will get it because the application is different. मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर बड़ा मुश्किल है पेटेंट लेना. It is just an phobia. चाइना के अंदर 6 साल का बच्चा भी पेटेंट ले लेता है. अंडरस्टैंड? बिकॉज दे पीपल नो द बेसिक यूटिलिटी, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर इन्वेंशन एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दैट इन्वेंशन. नेक्स्ट स्लाइड. पेटेंट आर टेरिटोरियल राइट्स. अगर आपने इंडिया में पेटेंट फाइल किया देन योर राइट्स इज लिमिटेड ओनली टू द इंडिया. बट इफ यू वांट टू फाइल द पेटेंट आउटसाइड द इंडिया देन यू कैन सबमिट बाय टू वे. आइदर यू कैन अप्लाई डायरेक्टली टू दैट कंट्री और यू कैन सबमिट बाय द पीसीटी. व्हाट इज द पीसीटी? PCT is a patent cooperation treaty by which you can file a patent application in multiple countries. Understand? जैसे if anyone from चंडीगढ़, चंडीगढ़ में एक सरल हरियाणा है, सब वो है संपर्क केंद्र. संपर्क क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी के बिल लेता है एंड टेलीफोन के बिल्स लेता है, स्टैम्प पेपर जनरेट करता है. बट ऑल द अमाउंट्स, ऑल द थिंग्स डन बाय पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, नॉट बाय संपर्क. दे जस्ट ए मीडिएटर. Similarly, PCT is just a mediator to forward your application to that country for further process. Next slide. Foreigner can also apply for the patent application. There are 4 offices in country. If you want to file a patent application from Haryana, Punjab, Himachal, then you can approach Patent Office Delhi, Southern Chennai, Western Mumbai, and rest of India, Kolkata. Next slide. How to file a patent application? You can submit by post also, by hand also, or you can submit by online mode also. Next slide. Now we will talk about section 3 and section 4. भारत सरकार क्या कहती है कि जिस जिस चीज का पेटेंट नहीं मिलेगा that all the things are covered into section 3 and section 4. Understand? Rest the things can be filed for the patent application. Frivolous invention or invention contrary to well established natural laws like perpetual machines, इनके लिए पेटेंट ग्रांट नहीं हो सकते. नेक्स्ट स्लाइड. कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, गैम्बलिंग मशीन. क्या गैम्बलिंग मशीन पे पेटेंट मिल जाएगा? आप कहते हो कि मैंने एक ऐसा डिवाइस बनाया है, 100 रुपीज का नोट डालो और 2000 रुपीज का नोट बाहर आता है. अच्छी गेम है, बहुत अच्छी गेम है. बट ऐसा 1000 टाइम में एक बार होता है. अंडरस्टैंड? 100 का नोट डालो और 2000 का नोट बाहर निकलता है. दिस इज जस्ट ए गैम्बलिंग मशीन. बट ऐसा 1000 में एक बार होता है. 999 टाइम्स आपका 100 रुपीज अंदर चला जाएगा और रिटर्न में 10 रुपीज आएंगे. ये डिपेंड करता है कि आप वो 2000% कौन सा है. अंडरस्टैंड? सो सच टाइप ऑफ थिंग्स कैन नॉट बी फाइल फॉर द पेटेंट एप्लीकेशन, बट वी कैन फाइल ए पेटेंट एप्लीकेशन ऑफ प्लेइंग गेम्स, नॉट गैम्बलिंग गेम्स. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट, मेयर डिस्कवरी ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है.
Discovery as such cannot be filed for the patent application. Discovery, theory and discovery of any living things. In simple language, किसी भी जीवित व्यक्ति के ऊपर किया गया कोई भी आविष्कार पेटेंट के लिए बाध्य नहीं है. Understand? Any invention which is whole, any living or non-living substance cannot be filed for the patent application. Next slide. Next. This is very important for pharmaceutical students. जितने भी फार्मेसी की लड़ाइयां होती हैं सभी इसी सेक्शन 3D के ऊपर फॉल करती हैं. अंडरस्टैंड? द मेयर डिस्कवरी ऑफ ए नॉन फॉर्म विच द मेयर डिस्कवरी ऑफ ए नॉन सब्सटेंस विच डज नॉट रिजल्ट इन द एनहांसमेंट ऑफ द नॉन एफिकेसी ऑफ दैट सब्सटेंस. समझ आ गया आपको? नहीं आया? जस्ट आपको समझ नहीं आया था? व्हाट इज दिस? इतना कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है. जस्ट इलेबोरेट. नेक्स्ट स्लाइड. कोरोना की छुट्टियां थी, हॉलीडे कहते हैं, कोरोना हॉलीडेज. मुझे एक मैडम ने फ़ोन किया कि सर मैं इनो का पेटेंट कराना चाहती हूँ. मैंने कहा क्यों? इनो में से आपने कोरोना के टाइम में क्या आविष्कार कर लिया? कहते जी इनो से ना केक बन रहे हैं, फ्लफी हो जाते हैं और पूरे मार्केट के अंदर इनो नहीं है. सो एज ए लेमैन आई वांट टू नो, कैन वी गेट ए पेटेंट एप्लीकेशन ऑन इनो फॉर जस्ट फ्लफिंग द केक? Yes or no? Why? It is not an invention. It is not an invention. अभी तक तो सिर्फ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए यूज होता था. वो केक को फ्लफी करते हो, अच्छी बात है, उससे आपको एसिडिटी नहीं होगी केक खाने के बाद, क्योंकि उसके अंदर इनो यूज है. इट वन ऑफ द मोर प्लस पॉइंट. इज इट और नॉट? होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? Just an innovation. It is just an innovation. How it is an innovation? Modified. Yes. This is section 3D. Everything is same, but you have discovered one new use. Understand? आप कहते हो कि छुट्टियां हो रही थी, मार्केट में मेरे दादाजी बीमार थे, उनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, मैंने पैरासीटामोल से उनका दर्द ठीक कर दिया. अब मुझे पैरासीटामोल के लिए पेटेंट चाहिए कि वो अर्थराइटिस भी ठीक करता है. कैन वी गेट ए पेटेंट एप्लीकेशन ऑन पैरासीटामोल फॉर अर्थराइटिस? इट इज ए ब्रेक थ्रू इन्वेंशन कि वो सिर्फ फीवर ठीक करती थी लेकिन अब वो अर्थराइटिस भी ठीक कर रही है. कैन वी गेट ए पेटेंट? यस और नो? नो, बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यू यूज ऑफ द एक्जिस्टिंग सब्सटेंस पेटेंट विल नॉट बी ग्रांटेड. यू हैव टू ऐड सम न्यू मेडिकामेंट और न्यू reactant in that compound, then you will get a patent application, or maybe change some therapeutic efficacy of that substance. Next slide. Next. Mirrored mixture, ready mixture. ये भी बहुत लोग करते हैं. बहुत से फार्मेसी के टीचर में कहते हैं पेटेंट कर दो. मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड है, कंपाउंड ए विच इज शोइंग एंटी डायबिटिक एक्टिविटी, कंपाउंड बी विच इज शोइंग एनाल्जेसिक एक्टिविटी. आपने दोनों को मिक्स कर दिया. नाउ ए बी शोइंग एंटी डायबिटिक एज वेल एज एनाल्जेसिक एक्टिविटी. कैन वी गेट ए पेटेंट एप्लीकेशन? नो, बिकॉज दिस इज एन ऑब्वियस थिंग्स. अंडरस्टैंड? Suppose if they can show anti-diabetic activity, then we get a patent application? No, because new use of the existing substance as per the section 3D, patent will not be granted. आप कहोगे इतने पंगे हैं तो पेटेंट कराएगा कौन? Is it or not? ये किस लिए है? To just stop evergreening of the patent application by the pharma company. Next slide. Next. A mere arrangement, a rearrangement. Suppose आपके पास एक बकेट है, आपने उसको किसी टॉर्च के साथ कनेक्टेड कर दिया एंड यू सेड दिस इज ए डिवाइस विच इज यूज फॉर द बकेट विद टॉर्च. सच टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन कैन नॉट बी फाइल फॉर द पेटेंट एप्लीकेशन. नेक्स्ट स्लाइड. मेथड ऑफ एग्रीकल्चर. कैन वी गेट ए पेटेंट एप्लीकेशन ऑफ मेथड ऑफ एग्रीकल्चर? नो. खेती करने के तरीके को भी हम पेटेंट के लिए फाइल नहीं कर सकते, बट द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर कैन बी फाइल फॉर द पेटेंट एप्लीकेशन. ओके, आप किस इंस्ट्रूमेंट से उसके अंदर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं, उसके लिए तो मिल जाएगा, बट द प्रोसेस यूज्ड ऑन द लैंड पेटेंट विल नॉट बी ग्रांटेड. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट स्लाइड. ओ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेक्शन 3I. एनी प्रोसेस फॉर मेडिकल, सर्जिकल, क्यूरेटिव, प्रोफाइलेटिक, डायग्नोस्टिक, थेरापेटिक और रेंडर देम फ्री फ्रॉम द डिजीज पेटेंट विल नॉट बी ग्रांटेड. समझ में आया? नहीं आया? आपने कुछ टाइम पहले न्यूज़ सुनी होगी, 4 मंथ 5 मंथ्स एगो, कि एक पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट करके एक ह्यूमन बॉडी के अंदर डाल दिया गया था. अंडरस्टैंड? क्या सच टाइप ऑफ इन्वेंशन
पेटेंट के लिए फाइल हो सकती हैं? यस और नो? व्हाई? एक हार्ट ट्रांसप्लांट की टेक्निक को पेटेंट के लिए फाइल कर सकते हैं कि नहीं? यस और नो? एक ऑपरेशन करने के प्रोसीजर को हम पेटेंट के लिए फाइल कर सकते हैं कि नहीं? कैन वी गेट ए पेटेंट एप्लीकेशन ऑफ सर्जिकल प्रोसेसेस? व्हाई? बिकॉज अगर आपने उनको राइट्स दे दिए तो फिर और किसी का ऑपरेशन ही नहीं हो सकता। इट्स ए वरदान, इट्स ए मोनोपोली राइट्स। फिर तो कई सारे रावण पैदा हो जाएंगे कि हम ही भी मान लेकर जाएंगे। अंडरस्टैंड? टू जस्ट स्टॉप द नेगेटिव एनर्जी इन द सोसाइटी, दिस इज जस्ट ए बैलेंस एक्ट। अंडरस्टैंड? इसीलिए सर्जिकल प्रोसेसेस के लिए पेटेंट नहीं मिल सकता, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए मिल जाएगा। रोबोटिक इंजीनियरिंग के लिए अभी भी समझ नहीं आएगा, मैं आपको और सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। मान लीजिए आपने ब्लड प्रेशर मेजर करने की एक नई मशीन डेवलप कर ली। आपने पहले ब्लड प्रेशर यहां मेजर किया था, आपने स्मार्ट वॉच बना ली। क्या स्मार्ट वॉच ब्लड प्रेशर बताती है? यस? यस और नो? कि आपको बेवकूफ बनाती है? क्योंकि वो बेवकूफ बनाते हैं। यस? आप इतने स्टेप चल लिए और टेंशन कम थोड़ी होती है, बढ़ती है उससे कि आपका बीपी बढ़ गया। क्या वो ब्लड प्रेशर बताते हैं? यस और नो? आता है ना उसमें डायस्टोलिक, सिस्टोलिक आता है उसमें? कि सिर्फ आपकी हार्ट बीट बताता है? क्लैरिटी नहीं आप लोगों को, पर होगी सबके यहाँ पे 50% लोगों के हाथ में स्मार्ट वॉच होगी। यस? नहीं बताता। बट सपोज करो आपने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली कि आपको कि ये इधर की बजाय इधर लगाओ स्मार्ट वॉच, और ये जो एरिया है ना हैंड का, ये मेरा पेटेंट हो गया। यहाँ पे कोई और आदमी ना रिसर्च नहीं कर सकता, है ना? कहीं ऐसे होते हैं लोग कि जगह मेरी होगी बस पूरे इंडिया में। एनी सर्जिकल प्रोसेसेस, एनी टेक्निक विच इज यूज फॉर द ह्यूमन बॉडी कैन नॉट बी फाइल फॉर द पेटेंट एप्लीकेशन। लेकिन आपने वो स्मार्ट वॉच बनाई, उसको तो पेटेंट मिल जाएगा, लेकिन वो बॉडी के अंदर क्या मैकेनिज्म कर रही है उसके ऊपर राइट्स नहीं मिलेंगे। गॉट माय पॉइंट? आप बाहर से कोई मर्जी मशीन बना लो, उसके लिए तो राइट्स मिल जाएंगे, बट ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या मैकेनिज्म हो रहा है उसके राइट्स आपको नहीं मिलेंगे उस डिवाइस लगाने के बाद। अंडरस्टैंड? सो रिमूवल ऑफ कैंसर ट्यूमर, रिमूवल ऑफ डेंटल प्लेग, सर्जिकल प्रोसेसेस, मेथड ऑफ वैक्सीनेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इनके ऊपर पेटेंट राइट्स नहीं मिलते। नेक्स्ट स्लाइड। सेक्शन 3J, plant and animal as such cannot be filed for the patent application. Understand? We can protect by the Plant and Variety Act, that is a different act, but as such plant and animals cannot be filed for the patent application. Next slide. Next. A literary work, dramatic work, musical work, artistic work, cinematographic work. पंजाब में तो काफी सिंगर हैं, क्या आपने नया गाना गाया उसको पेटेंट करा सकते हैं? मेरे पास आते हैं पंजाब, मेरा पेटेंट करा दो जी मेरा गाना, होने तो होने करा दो बस, मेरे तो अलावा कोई ना गा सके वो गाना। कैन वी गेट ए पेटेंट एप्लीकेशन ऑन सिंगिंग ए सॉन्ग? यस और नो? यस और नो? यस तो क्यों यस, नो तो क्यों नो? कॉपीराइट क्यों होगा? कॉपीराइट भी मुझे बताओ क्यों होगा? पेटेंट क्यों नहीं होगा? यस एनीवन? पेटेंट क्यों नहीं होगा? गाना गाने की टेक्निक को हम पेटेंट क्यों नहीं करा सकते? व्हाट इज द रीजन? पेटेंट किसका होता है? तो गाना कौन सी इन्वेंशन है? सारे गा रहे हैं, आप भी गाओ। अंडरस्टैंड? बट आपने लिरिक्स लिखे, वी कैन प्रोटेक्ट बाय द कॉपीराइट प्रोटेक्शन। बहुत सारे पंजाबी सिंगर पकड़े जाते हैं, तुमने मेरा गाना गा लिया। अभी एक फिल्म आई थी, कौन सी थी, जुग जुग जियो, उसमें पंजाबी सिंगर का गाना ले लिया था उसने, क्या नाम है जो डायरेक्टर था, करण जौहर ने, उसने खुलेआम कह दिया कर लो जो करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, फिल्म रिलीज कर लिया, पैसे दे दे इनको, और वो सिंगर पाकिस्तान से था। बिकॉज कॉपीराइट इज वैलिड अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया। मैंने आपको बताया पेटेंट इज प्रोटेक्टेड थ्रू टेरिटोरियल वाइज, बट कॉपीराइट इज प्रोटेक्टेड इटसेल्फ अक्रॉस द वर्ल्ड। यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्मॉल थिंग्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। हम लोग क्या सोचते हैं, गूगल पे जो कुछ भी अवेलेबल है वो हमारी अपनी संपत्ति है, राइट क्लिक करके सेव एज करके हम अपने डेस्कटॉप पे रख सकते हैं। रख सकते हो,
लेकिन आप उसको कमर्शलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। अपनी सम्मति समझ के अपने पास ही रख लो, लेकिन लोगों को बेचना मत। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, मेथड ऑफ लैंग्वेज, मेंटल एक्ट। एक व्यक्ति कहता है कि मेरे को 100 लैंग्वेज आती हैं, क्या उसको पेटेंट मिल जाएगा? मैं कहता हूं मैंने 400 लेक्चर दे रखे हैं, मुझे पेटेंट दे दो इस बात का, मिल जाएगा? वाई? बिकॉज दिस इज नॉट एन इन्वेंशन, ओके। और पेटेंट हमेशा इन्वेंशन का होता है। मेंटल एक्ट, मेथड फॉर लर्निंग प्लेइंग गेम्स को कभी भी पेटेंट राइट्स नहीं मिलते। मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग सिंबल्स, बट प्लेइंग गेम को आप पेटेंट करा सकते हो, प्लेइंग ऑपरेटर्स को भी आप पेटेंट करा सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। ट्रेडिशनल नॉलेज, जितने भी हमारी फार्माकोग्नोसी के टीचर्स होते हैं वो लेके आते हैं, हमने ये रिसर्च कर ली, अब इसको हम पेटेंट फाइल करने आते हैं, बट दैट इज ऑलरेडी रिटन इन द लिटरेचर, सो वी कैन नॉट फाइल एज सच प्योर टेक्निक। अब आप टर्मरिक के जितने मर्जी यूज लेकर आ जाओ, जितने मर्जी यूज लेके आ जाओ, बाबू ने पहले लिख रखे हैं इतने यूज उसके, जो जितने ऋषि मुनि थे उन्होंने इतने यूज लिखे हुए हैं कि शायद आज के लोगों को पता ना हो इतनी बीमारियां थी। बिकॉज दिस इज द रीजन, आपने देखा होगा टर्मरिक का जो पेटेंट है वो यूएसए ने ले लिया था, और जो नीम का पेटेंट है वो यूरोपियन पेटेंट ऑफिस ने ग्रांट कर दिया था। बट जस्ट बिकॉज दिस इज लिटरेचर अवेलेबल इन द संस्कृत, दे कैन ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, एंड आफ्टर दैट दे कैन स्टॉप अदर पर्सन कि आप इसको यूज नहीं कर सकते फॉर द पेटेंट ग्रांट। नेक्स्ट स्लाइड। Invention falling under Atomic Energy Act cannot be filed for the patent application. Next slide. Next. This is the trends in the patent application. हमारी कंट्री में अप्रोक्सीमेट 50,000 पेटेंट एप्लीकेशन फाइल होते हैं पर ईयर फ्रॉम लास्ट 7 to 8 years. नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। ये टॉप 10 एप्लीकेंट है जो पेटेंट फाइल करते हैं, CSIR, सेल इंस्टीट्यूट, DRDO। नेक्स्ट स्लाइड। ये टॉप 10 एप्लीकेंट इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटीज हैं, IIT, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, शोर यूनिवर्सिटी, जो पेटेंट एप्लीकेशन करती हैं फाइल्स मैक्सिमम। नेक्स्ट स्लाइड। टॉप 10 फॉरेन रेजिडेंट एप्लीकेंट, बाहर के लोग इंडिया में पेटेंट फाइल करते हैं मैक्सिमम, क्वालिकॉम, सैमसंग, हुआई। नेक्स्ट स्लाइड। वेयर वी आर लैकिंग, वेयर वी आर लैकिंग बेसिकली व्हाट इज द नीड ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन आवर कंट्री, अप्रोक्सीमेट 52,000 पेटेंट एप्लीकेशन फाइल पर ईयर, एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका how many? 6 lakh approximate, China 15 lakh, and Japan 2,18,000. How's the Josh? High? Very low. थोड़ा सा लो और कर देता हूं मैं। नेक्स्ट स्लाइड। 50,000 में भी जो 75 से 80% पेटेंट है वो फॉरेनर फाइल करते हैं। यू कैन सी कि 130 करोड़ की जनसंख्या में मात्र 15 से 20,000 लोग ऐसे हैं जो पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करते हैं, जिसमें से 50% फर्जी होते हैं, बोगस होते हैं, कॉपीड होते हैं, प्रॉपर्टी ड्राफ्टेड होते हैं, ये चोरी किए होते हैं। सो दिस इज द रेशो। हाउ मेनी पेटेंट फाइल इन इंडिया इन फार्मास्यूटिकल साइंस? हमारी कंट्री में फार्मास्यूटिकल साइंस में कितने पेटेंट ग्रांट होते हैं? जस्ट ओनली 250 अप्रोक्सीमेट, इंक्लूडिंग ऑल द इंडस्ट्रीज, ऑल द यूनिवर्सिटीज, ऑल द इंस्टीट्यूट्स। नेक्स्ट स्लाइड। अब कहोगे कि हमारे पंजाब में कितने पेटेंट फाइल होते हैं, ये भी बताना चाहिए आपको, स्टेट वाइज डाटा। मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया तो मुझे स्लाइड ऐड करनी पड़ी कि चलो आपने इंडिया की तो बात कर ली, साढ़े पंजाब की भी गल कर लो। पंजाब में अप्रोक्सीमेट 660 पेटेंट फाइल होते हैं, अप्रोक्सीमेट 600-700, जिसमें से भी 50% प्राइवेट यूनिवर्सिटी फाइल करती है। आपकी यूनिवर्सिटी हो गई, चिटकारा हो गई, शूलनी हो गई, सॉरी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गई, एंड रेस्ट ऑफ द पेटेंट फाइल बाय द MSMEs। नेक्स्ट स्लाइड। ऐसे आपको सर्टिफिकेट इशू होता है। नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज द वेबसाइट ऑफ IP इंडिया। नेक्स्ट स्लाइड। इज सॉफ्टवेयर इज पेटेंटेबल इन इंडिया, यस और नो? नो। नेक्स्ट स्लाइड। बिकॉज सॉफ्टवेयर इज नॉट एन इन्वेंशन, इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए लिटरेचर एंड लिटरेरी वर्क, सो वी कैन प्रोटेक्ट बाय द कॉपीराइट प्रोटेक्शन। नेक्स्ट स्लाइड। इन USA सॉफ्टवेयर कैन बी प्रोटेक्टेड एज ए पेटेंट एप्लीकेशन। नेक्स्ट स्लाइड। Next, business method. Can we protect business method as a patent? What is a business method? Like Flipkart, Amazon. Can we protect by the patent rights? No. Because, next slide, not a copyright. Rule and method for doing a business is not regarded as an invention. Yes, we can protect by the trademark of the company name. Next slide. ये total 30 forms होते हैं. Next slide. Next.
ऐसे आपको 1600 रुपीज फीस पे करनी पड़ती है। लास्ट ईयर ये फीस थी 8000 रुपीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिड्यूस करके इसको 1600 रुपीज कर दी फॉर द पेटेंट एप्लीकेशन फाइलिंग। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, this is the useful element of the patent document. It's like a research paper, but there are two columns. One is the applicant and another is the inventor, and the right goes to the applicant, not to the inventor. This thing is clear. First one is the title of the invention, location and inventor of the location, inventor and location of the inventors, assignee, patent application, means every information given on the patent document, every small things. Next slide. Next, this is the stages. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पेटेंट फाइल कर दिया हमारा ग्रांट हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट। फर्स्ट यू हैव टू फाइल द प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। आफ्टर दैट इट विल बी पब्लिश इन द पेटेंट जर्नल ऑटोमेटिकली विद इन 48 मंथ, विद इन 18 मंथ्स। आफ्टर 18 months you have to request for the examination within 48 months from the date of the filing. Then patent examiner will issue a examination report. You have to reply the examination report. After that your patent will be granted. Next slide. Next. Oh, this is very important for you. आपने देखा है लिखा हुआ TM and SM anywhere? What is TM? SM मतलब किसी को नहीं पता होता। आज के बाद आपने ये नहीं कहना कि SM क्या होता है। CT group of institutions is TM or SM? SM. SM means सर्विस मार्क्स। यहां सर्विसेज दी जाती हैं, एजुकेशन सर्विसेज। ट्रेडमार्क मीन्स प्रोडक्ट। अंडरस्टैंड? अब आप कई जगह पढ़ोगे ना कि कहीं लिखा होता है ISI, ISO, ISI मत पढ़ लेना। ISI अलग होता है, कहीं ना कहीं वो क्या होता है जी, ऑर्गेनाइजेशन होती है। एक होता है ISO, ओके, उसको भी अभी मैं स्टडी कराऊंगा आपको। बट फर्स्ट थिंग इज TM एंड SM। जब पूरा कंप्लीट प्रोसीजर होता है देन वी कैन राइट R मींस रजिस्टर्ड। ऑल द फॉर्मेलिटीज कंप्लीट, नाउ यू कैन राइट R। नेक्स्ट स्लाइड। ट्रेडमार्क आर ग्रांटेड फॉर साइन, वर्ड्स, लेटर, कलर ऑफ कॉम्बिनेशन, रिप्रेजेंटेशन। हिंदी में हम इसे कहते हैं व्यापार चिन्ह। ऐसी आइडेंटिटी, ऐसा मार्क जिसकी वजह से लोग आपको पहचान सके, दैट इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। आपको लोग कैसे पहचानते हैं? नाम से, नाम से जानते हैं। उसके अलावा काम से और अपीयरेंस से, यस, शेप और स्मेल से। वी कैन प्रोटेक्ट स्मेल ऑल्सो थ्रू ट्रेडमार्क। अंडरस्टैंड? यही पता होना चाहिए आपको। ज्यादा आ गया कैमरे का, राइट? डिस्टर्बेंस हो रही है। वी कैन प्रोटेक्ट स्मेल ऑल्सो थ्रू ट्रेडमार्क। अंडरस्टैंड? वी कैन प्रोटेक्ट म्यूजिक ऑल्सो, जैसे ये टाटा की जो आईफोन की बेल है, इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय द ट्रेडमार्क। नेक्स्ट स्लाइड। You will get a trademark for lifetime, but you have to renew after every 10 years. पेटेंट की तरह नहीं है कि 20 साल के बाद खत्म हो गया जी, खत्म हो गया। ये आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा, बट यू हैव टू रिन्यू आफ्टर एवरी 10 ईयर। अगर आपने रिन्यू नहीं कराया, then anybody can use such type of brand name for their or company name. Next slide. Next slide. There are 45 classes of trademark. 34 तक हम TM लिखते हैं, 34 से आगे हम SM लिखते हैं, क्योंकि 35 से 45 for the services mark. And 1 to 34 for the product marks, that is called trademark. For class 1 for the chemicals, class 3 for the cosmetics, class 5 for the medicines, class 7 for the machine tools, class 9 for the electronic components, class 11 for the LED lights, class 24 for the textile, and class 25 for the ready-made garments, class 29 for the edible oils, and class 30 for the dal, chawal, atta, food products. Understand? Class 35 for the trading, and class 36 for the finance company, loan companies. Class 41 for the education services. Your university name, college name, city group is protected under class 41. Protect है, check कर लिया मैंने सुबह ही. Understand? It is protected. Class 45, 43 for the restaurant. होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर? No. 45 for the NGO services for the public benefit. So there are 45 classes. Understand? Next slide. मार्केट में क्वेश्चन आर्टिकल रहता है, डोंट यूज आवर ब्रांड नेम। अगर आपने ऐसा किया, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी जाएगी। टू जस्ट अवेयर द पब्लिक अबाउट देयर ब्रांड नेम। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, आप मार्केट में जाए, आपको पानी की बोतल मिले, आप ले लेंगे?
Why? Why? अगर मैं कोई एक बोतल मैं बेच रहा हूं तब ले लोगे आप? You people trust me? No? You people don't trust me? Very good. Next slide. अब आप ले लेंगे? बिस्लेरी वाले क्या लगते हैं आपके? आपको ट्रस्ट है इस पे? Why? Why? What is brand? What is brand? क्या किसे कहेंगे ब्रांड? What is the definition of brand? Yes? Yes, please speak. ट्रेडमार्क तो किसी भी ले सकता है. टीएम तो आपको 5,000 रुपए की फीस सबमिट करनी है, टीएम लग जाएगा. बट हाउ यू कैन डिफाइन ब्रांड? Sir, that has gained public popularity. How you can gain public popularity? Used by quality product. Quality products? To the market. Yes. Public assures it and relies upon it, so it becomes a brand. So this is the reason you can trust on Bisleri. You don't trust on me, right? अगर मैं बिना लेबल की कोई बोतल दे रहा हूं तो आपको विश्वास नहीं है कि सर ने कुछ इसके अंदर मिला दिया होगा और ये पानी प्योर नहीं है. अंडरस्टैंड? कोई भी नहीं लेगा मेरी बोतल? नो वन. ओके, ठीक है, गुड. बिकॉज मेन प्रॉब्लम इज लेबल इज नॉट देयर. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट स्लाइड. मैं लेबल लगा देता हूं इसके ऊपर. कैन यू परचेज नाउ? ले लोगे अब आप? नो? इतनी मेहनत से मैंने लेबल लगाया. ये मेरा हाथी और मैंने आईपीआर कॉन्फ्रेंस में पानी पिया हुआ है. कैन यू परचेज नाउ? वाई? नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम नाउ? सेम तो मैं रख नहीं सकता वरना आप मुझे फंसा दोगे कि सर कॉपी कर रहे हैं. नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम नाउ? अब क्या प्रॉब्लम आ गई? अंतर तो होगा ही ना, सेम थोड़ी हम. बट व्हाट इज द प्रॉब्लम टू परचेज सच टाइप ऑफ बोटल्स? दैट आई वांट टू नो. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल ब्रांडिंग. किस क्या कहते हैं इसको? यही है ना? आपको पसंद नहीं आया, चलो मैं थोड़ा कोशिश करता हूं, थोड़े से और सिमिलर वर्ड लगाने की कोशिश करता हूं क्योंकि सेम तो लगा नहीं सकता. नेक्स्ट स्लाइड. नाउ अब आप भी कंफ्यूज हो गए बिस्लेरी के स्पेलिंग क्या होते हैं. इज इट और नॉट? कैन यू परचेज नाउ? स्टिल नो? नेक्स्ट स्लाइड. कैन यू परचेज नाउ? विच वन इज ओरिजिनल? विच वन इज ओरिजिनल? व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ ओरिजिनलिटी? व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ ओरिजिनलिटी? सबने कहा बीच वाली असली है जी, बाकी सब डुप्लीकेट है. अब मुझे एक बंदा बता दो कि जो कह दे कि ये असली का तरीका जी है, ये असली है. किसने कौन सी आइडेंटिफिकेशन कर रखी है, किसने कौन सा एनालिसिस कर रखे है, कौन सा केमिकल टेस्ट कर रखा है पानी की बोतल पे बीच वाले में, जो आपने इतनी ऑथेंटिकेशन से सबने आवाज दी जी बीच वाला असली है. यस? जस्ट बिकॉज ऑफ स्पेलिंग. कौन सी एडवर्टाइजमेंट देखी? क्या कहा? यस प्लीज सेंड. बहुत अच्छी बात है, प्लीज सेंड. कौन है ये ऊंट वाला? खड़ा हो जाए. यस, मैंने बोली थी ये लाइन. आप प्लीज स्टैंड अप, डोंट हेजिटेट. यस. हाँ, आपने ऐड नहीं देखी टीवी में? क्या कहता ऊंट? नहीं नहीं, कुछ और लाइन कहता है. ऊंट क्या कहता है? ऊंट कहता है कि मैं ऊंट हूं, गधा नहीं हूं जो दूसरा पानी पी लूंगा. ये चॉकलेट दे दो उसको. एक तो इनडायरेक्टली उन्होंने कह दिया कि जो साइड वाला पानी पिएंगे कौन होंगे? अंडरस्टैंड? सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड साइकोलॉजिकल ब्रांडिंग. आपको बार बार कहा जाता है अपने बालों को हो, अपने बालों को हो, जुग जुग जियो. कौन कहता है ये? पतंजलि. तो बाल तो जुग जुग जी रहे हैं. व्हाट इज योर रोल इन दिस? बट दिस इज कॉल्ड ए पंच लाइन. वी कैन प्रोटेक्ट पंच लाइन ऑल्सो. अंडरस्टैंड? इसको लगा डाला लाइफ. अंडरस्टैंड, गुड. ये सबको पता था, जुग जुग जियो नहीं पता था. मीन्स उसकी पॉपुलैरिटी इतनी नहीं पहुंची अभी. अंडरस्टैंड? डर के आगे? डर के आगे मौत है. उसके चक्रों में मत पड़ जाना आप.
अंडरस्टैंड? नेक्स्ट स्लाइड. बिस्लेरी हैज ओन वैल्यू रेपुटेशन. नेक्स्ट स्लाइड. इनकी एक अपनी ऑडिट होती है, एक अपनी कंपनी होती है, इनकी खुद की ब्रांडिंग होती है. मीन्स यू पीपल बिलीव ऑन द ब्रांडिंग. इट डजंट मैटर किसी ने क्वालिटी नहीं चेक की, लेकिन वो लोग एक ब्रांड की रेपुटेशन पर ट्रस्ट करते हैं कि मार्केट में सबसे ज्यादा सेल होता है. नेक्स्ट स्लाइड. बैक 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 बैक. आइडेंटिफाई दिस सिंबल. कहां लिखा है नाइकी? मुझे लगा ये वो मार्क है जो चाहते हैं आपकी टीचर आपकी शीट पे दे. Who said this is a Nike? Again this is a. अगर आप नाइकी का लोगो चेक करोगे ना, लोगों ने इतने तरीके से ट्रेडमार्क अप्लाई किया ना कि नाइकी वाले भी हैरान हो गए. मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल सुनाता हूँ. मैं एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गया IPR की. वहाँ पे कैसियो वालों ने अपना स्टोर लगा रखा था. तो मैंने मैडम को कहा कि आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कैसियो ओरिजिनल कौन सा डुप्लीकेट. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी आल्सो. इंडियन ऐसे कॉपी करते हैं, मैं खुद भी अपना असली नहीं पहचान पाती. कितनी कॉपी होती है कैसियो कैलकुलेटर की. तो ये उनकी स्टेटमेंट्स थी. तो फिर उसके बाद कहा कि मैं सेफ हूं, मुझे भी नहीं पहचान होती. जब कंपनी वाले नहीं पहचान पा रहे तो फिर मैं कहां से पहचानूंगा. नेक्स्ट स्लाइड. देयर आर 4 टाइप ऑफ ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क इन विच प्रोवाइड द प्रोडक्ट्स. सर्विस मार्क्स इन विच प्रोवाइड द सर्विसेज, लाइक क्लास 35 to 45. अंडरस्टैंड? Collective marks applied by the group of association like All India Management Association, All India Council of Technical Education, Pharmacy Council of India. These all are the collective marks. Certification mark like ISI, ISO, wool mark, egg mark. These all are the certification marks. पानी असली है नकली, ये पहचानने के लिए ट्रेडमार्क नहीं काम आएगा, ये पहचानने के लिए ISI काम आएगा. अंडरस्टैंड? अगर उसके ऊपर ISI मार्क है मीन्स उसके ऊपर ऑथेंटिकेशन है. आपको कोई भी अगर पानी का काम शुरू करना है, बिना ISI मार्क के आप मार्केट में उससे सेल नहीं कर सकते. इट इज मैंडेटरी, उसके ऊपर ISI मार्क होना चाहिए. वेल नोन मार्क्स, मर्सिडीज, रिलायंस, गोदरेज, टाटा. दीज ऑल आर दी वेल नोन मार्क्स. इसके नाम से आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते. लाइक मर्सिडीज, रिलायंस, गोदरेज, टाटा, स्विगी. स्विगी को भी अभी वेल नोन मार्क्स में ऐड कर दिया गया है. ओला. नेक्स्ट स्लाइड. These all are the trademarks which we are using 6 AM to 10 PM. We all are using this brand name from 6 AM to 10 PM. Is it clear? समझ आ गया आपको स्लाइड ये? नेक्स्ट स्लाइड. Which one is original? Which one is original? You people are very biased. बड़ी कंपनी दिखती है आपको असली दिखती है, छोटे वाले को तो आप सोचते नकली है, बेकार है, सब बेकार है. नेक्स्ट स्लाइड. विच वन इज ओरिजिनल? You people are really biased. In this case both are original. You just convert Honda into telephone, it's look like a Hyundai. Otherwise you can do one experiment on chemistry lab. You just boil 100, you take a 100 ml boiling water and just add a Honda logo. It will convert into automatically Hyundai after melt. Is it or not? Then how you can say both are original? What is the criteria? ऐसा आपने कौन सा क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है कि इसको आप एकदम से नकली कह देते हो, इसको आप एकदम से असली कह देते हो, मतलब आप इमीडिएटली डिसीजन ले लेते हो. नेक्स्ट स्लाइड. विच वन इज ओरिजिनल? इस पे आवाज कम आई है माइक. मे बी सम पीपल कैन यूज फॉर लव एंड फेयर माई लव. इज इट और नॉट? अगर फेयर एंड लवली असली था तो उसको अपना नाम ग्लो एंड लवली क्यों करना पड़ा? डू यू नो? फेयर तो आया नहीं, अब शायद ग्लो आ जाएगा. एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? देयर इज ए कोल्ड वन एक्ट दैट इज कॉल्ड ए मैजिक एक्ट. डू यू नो अबाउट मैजिक एक्ट? कि आप किसी भी व्यक्ति को यह कह के भ्रमित नहीं कर सकते कि इस ब्रांड नेम से ये होगा. अंडरस्टैंड? और ना होने पे आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी. लेकिन स्टिल दिस इज नो प्रॉब्लम इन फेयर माई लव एंड फॉर लव बिकॉज दिस इज इफ इट इज ए फेयरनेस क्रीम, तो इसलिए इन्होंने फेयर वर्ड यूज किया. बट एंटायरली ऑल थ्री प्रोडक्ट्स आर ओरिजिनल. ऐसा नहीं कि आप हर एक के ऊपर डुप्लीकेट की पेस्ट लगा दोगे. ऑल आर ओरिजिनल्स. ओके. नेक्स्ट स्लाइड.
Yes. Sometimes people are using artistic work of the company. Next slide. Next. Everything is okay? Okay is not okay because Ola is there. This is a direct case of counter infringement. आपने सिर्फ कॉपी किया, font, bottle of the shape, everything is copied. Next slide. Next. Back. ये जयपुर का केस है. Somebody is selling fruit in and they are defending that कि इसके अंदर fruit इसके अंदर है, इसलिए हमने इसका नाम रखा है fruit in. This is not a fruity and there is a lot of difference in fruity and fruit in. Is it or not? ऐसे जो एडवोकेट होते हैं डिफाइन करते हैं, सर दिस इज ए फ्रूट इन नॉट ए फ्रूटी. देयर इज नो प्रॉब्लम इन फ्रूट इन एंड फ्रूटी बट यू कैन सी द शेप ऑफ द बॉटल्स, सब कुछ सेम. चोरी कर रहे हो, ऊपर से सीना चोरी. नॉन अवेलेबल वाला निकलते हैं अगर ट्रेडमार्क को आपने कॉपी कर लिया तो इमीडिएटली. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट. यस. Now, as a pharmacist, you must know what is the importance of these slides. Suppose करो आप चंडीगढ़ पीजीआई से कोई मेडिसिन लेके आए, डॉक्टर ने आपको एलर्जी की दवाई लिखी इट्राकोनाजोल एंड द ब्रांड नेम इज मेडजोल 200. आप जलंधर में आ गए या मोगा में आ गए या इन बिटवीन आ गए सिटी यूनिवर्सिटी. आपने केमिस्ट के पास गए, आपने कहा मुझे मेडजोल दे दो. ठीक है, आपने लेमैन की तरह ले ली मेडजोल. सपोज करो उसने आपको इस्माप्रोजोल दे दी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, गैस्ट्रिक दवाई आप डेली खा भी लोगे तो आपको कुछ नहीं बिगड़ेगा 10 दिन. जो आपने डेली एल्बेंडाजोल खा ली नीचे वाली, तो आपकी टिकट कट जाएगी. बिकॉज दिस मेडिसिन यूज्ड वंस इन ए मंथ और ट्वाइस इन ए मंथ. सो समटाइम इट्स ए लाइफ थ्रेटनिंग आल्सो. जब हम ट्रेडमार्क के केस अटेंड कर ले होते हैं हियरिंग के टाइम, तो हम एग्जामिनर कहता है कि फार्मेसी के तो हम बड़े सोच के देते हैं ब्रांड नेम. हमें कंट्रोलर साहब से चिट्ठी आई हुई है कि ऐसी हर किसी को ब्रांड मत बांटते हो. So some company have gained their monopoly of prefix of the chemical name. Like if you are selling a cefixime, they can take a monopoly of Cef. हालांकि नहीं मिल सकता, लेकिन उन्होंने कह रखा कि हम कोई भी व्यक्ति अगर Cef नाम से ब्रांड नेम यूज करेगा, we can oppose that and this is our right on the cefixime Cef. Like if somebody can sell amoxicillin, तो मोक्स वर्ड पे राइट हमारा है. And if somebody selling a कंपनी है नोवा, अगर कोई भी नोवा वर्ड यूज करता है तो उसको अपोज करते हैं. इफ समबडी इज यूजिंग ए काइंड वर्ड तो मैनकाइंड वाले अपोज करते हैं. हालांकि ट्रेडमार्क क्या कहता है कि नोबडी कैन क्लेम फॉर दी एज पर द सेक्शन 9 काइंड क्वालिटी क्वांटिटी के ऊपर राइट्स नहीं मिलते और नॉट ऑन द डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स विच डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ द गुड्स. एंड व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द गुड्स? मान लो आप बी फार्मेसी करने के बाद कोई दवाई बना लेते हो शुगर ठीक करने की, ठीक है, डायबिटीज के लिए, और आपने उसका नाम रख लिया शुगर रक्षक. Can we get a trademark on such type of brand names? Sugar Rakshak? Yes or no? Why? टीवी पे ऐड देखिए, पेट सफा. दिस इज आवर डिफेंडिंग आर्गूमेंट. सर जब पेट सफा मिल सकता है तो शुगर रक्षक क्यों नहीं? पेट सफा के बाद पता नहीं कितने सफा हो गए हैं. दर्द सफा, मतलब हंसी आती है. मैं देखता हूँ ना लोग मतलब इमीडिएटली अप्लाई करते हैं ट्रेडमार्क. जिस दिन हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा लॉकडाउन वर्ड का यूज किया, सेम डे एप्लीकेशन लॉकडाउन की अप्लाइड हो गई थी. यू जस्ट इमेजिन हाउ मेनी पीपल आर फोर्स फॉरवर्ड. और एक और वर्ड था क्वारंटाइन. कितने लोगों ने ट्रेडमार्क फाइल किया. वोकल फॉर लोकल जैसे अनाउंस हुआ इमीडिएटली विद इन 15-20 मिनट्स में लोगों ने ट्रेडमार्क फाइल कर दिया. बिकॉज वो ब्रांड नेम वर्ड ऑलरेडी पॉपुलर कर चुके हैं, किसी और की पॉपुलरिटी का आपने बेनिफिट ले लिया. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट स्लाइड. Next. Sometimes people using a artistic work of the brand name. आप किसी के आइडेंटिटी को, किसी के लुक को, किसी अपीयरेंस को मोनोपोली के लिए क्लेम्स नहीं कर सकते. पार्ले जी 18 साल हो गए, बच्चा बड़ा नहीं हुआ. इन्होंने अपनी आइडेंटिफिकेशन चेंज नहीं की. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? बिकॉज पीपल कैन आइडेंटिफाई द आउटर अपीयरेंस ऑफ द डिवाइस. देखा आपने क्रोसिन का पत्ता जो अभी भी वही सेम आती है स्ट्रिप, कोई चेंजेस नहीं है ना लोगों में ना कुछ. पर एयरटेल वाले जल्दी बदल लेते हैं, वोडाफोन वाले बदल लेते हैं, आइडिया वाले तो वोडाफोन के साथ ही आ गए, अब वीआई हो गया. अंडरस्टैंड? दैट इज ए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बट दिस इज ए गुड्स.
दिस इज नॉट ए सर्विसेज। लाइक डेयरी मिल्क, डेयरी मिल्क ने अपना पेरेंट प्रोडक्ट अभी भी चेंज नहीं किया, मार्केट में अवेलेबल है। फ्रॉम हाउ मेनी ईयर्स? बिकॉज दिस इज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपनी। अंडरस्टैंड? वो कैसे बदल लेंगे? अगर आपको बदलना है तो उसका नया वर्जन लेके आए मार्केट में, बट स्टिल दे आर यूजिंग सच टाइप ऑफ ब्रांडिंग। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, हाउ टू सिलेक्ट ए ट्रेडमार्क, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें किसी का नाम सिलेक्शन कैसे करना है? नेम सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट शुड बी इजी टू स्पेल, इट शुड बी इजी टू प्रोनाउंस। मान लीजिए आपने चॉकलेट बेचनी है और आपने नाम रख लिया सुभाष चंद्र भूषण चॉकलेट, कौन परचेज करेगा चॉकलेट आपकी? लेगा कोई? क्यों नहीं लेगा? सुभाष चंद्र तो ले ही लेगा, मेरे नाम से चॉकलेट आ रही है। बट इट्स नॉट लाइक दैट। तो बहुत ही बोलने में अच्छे नहीं है, बट स्टिल दे हैव ए वेरी गुड पॉपुलैरिटी, लाइक सुकैम। वट इज सुकैम? बट सुकैम इज ए वेरी गुड नेम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स अपीलेंस। आप कुछ नाम अपनी तरफ से क्वाइन कर सकते हैं, लाइक कोडेक डाल्डा। एज सच देयर इज नो मीनिंग इन द डिक्शनरी कोडेक एंड डाल्डा, बट पीपल कैन आइडेंटिफाई बाय देयर नेम। ये लकड़ी के ऊपर क्या लगा हुआ है? ये दिस सनमाइका, दिस इज ए लैमिनेट्स, दिस इज नॉट ए सनमाइका। सनमाइका इज ए ब्रांड नेम। अगर आपने सनमाइका की भी ऐड देखी होगी तो वो स्पेशली अनाउंस करते हैं हर माइका सनमाइका नहीं होता। अंडरस्टैंड? कपड़े धोने के लिए क्या यूज करते हो आप? घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। यू कैन से ओनली डिटर्जेंट पाउडर, डोंट से कि हम सर्फ यूज करते हैं। कई लोग कहते हैं देखा मार्केट में टाइड वाला सर्फ दे दो, टाइड वाला सर्फ दे दो, टाइड वाला डिटर्जेंट पाउडर नहीं बोलते, टाइड वाला सर्फ दे दो। इज इट और नॉट? बोलते हैं ना, ये कौन सी कंपनी का सर्फ है? ये नहीं बोलते कौन सी कंपनी का डिटर्जेंट पाउडर है, कौन सी कंपनी का सर्फ है। इज इट और नॉट? तो दिस इज कॉल्ड ए गुडविल। ठीक है ना? अब हैरानी की बात कई लोग होते हैं, ये कौन सी कंपनी की बिस्लेरी की बोतल आया है? इज इट और नॉट? ये कौन सी कंपनी की बिस्लेरी की बोतल आया है? पानी की बोतल नहीं बोलेंगे, कौन सी कंपनी की बिस्लेरी की बोतल आया है? इज इट और नॉट? सो दिस इज जस्ट कॉल्ड कि सबसे पहले मोनोपोली किसने बनाई, किसने उसके गुडविल का बेनिफिट लिया, और लोग उसी गुडविल के ऊपर सेम कॉपी करते हैं। लाइक रिवाइटल, रिवाइटल के ऊपर लोगों ने इतनी R&D करी है जितनी उसकी टैबलेट बनाने पे भी नहीं की होगी, उसका नेम रखने पे की है। किसी ने स्पेस दे दिया, किसी ने री डबल कर दिया वाइटल, भी किसी तरीके से हमारा ट्रेडमार्क ग्रांट हो जाए, रजिस्टर्ड हो जाए। लेकिन जो है कंपनी सन फार्मा के पास आई थिंक ये राइट सब वो छोड़ती नहीं है। आप अप्लाई करके देखो, वो आपके पीछे पीछे है, बस रेट भी डाल देगी और आपके अरेस्ट भी करवा देगी। नेक्स्ट स्लाइड, सॉरी बैक। अवॉइडिंग सच टाइप ऑफ वर्ड विच डिस्क्राइब द क्वालिटी, बेस्ट, परफेक्ट, सुपर। मान लीजिए आपने मिल्क बेचना है और आपने ब्रांड नेम रख लिया प्योर, मिल जाएगा आपको प्योर मिल्क। अरे भाई मिल्क तो प्योर ही होता है। अंडरस्टैंड? इट मींस दिस वर्ड डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ द गुड्स। मुझे कल किसी ने कहा कि हमने एक ट्रेडमार्क रजिस्टर करना है, आप नाम रख दो स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं कहा इलेक्ट्रॉनिक्स तो स्मार्ट ही आ रही है आजकल। तो सच टाइप ऑफ वर्ड्स, द सिलेक्शन ऑफ द नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी रख लो। मेरे पास एक लोग आए, मेरे बाबा जी ने ये नाम बताया, बाबा जी वाले नाम बिल्कुल नहीं मिलते। यू हैव टू सर्च ऑन द ट्रेडमार्क पोर्टल। किसी भी गुरु के नाम पे, किसी भी धर्म के नाम पे, किसी भी रिलीजन के नाम पे कोई भी ट्रेडमार्क ग्रांट नहीं होता, मोनोपोली राइट्स नहीं मिलते, बिकॉज उस पर सबका अधिकार है। ये पूरी बकायदा लिस्ट अवेलेबल है। किसी भी केमिकल के नाम पे, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे कोई भी राइट्स नहीं मिलता। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सच टाइप ऑफ वर्ड्स कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड एज ए ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन। नेक्स्ट स्लाइड, माइक भी थक गया। नेक्स्ट नेक्स्ट, दिस इज द सर्टिफिकेट ऑफ द ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट नेक्स्ट, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं ट्रेडमार्क। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं, आप गूगल पे डालेंगे ट्रेडमार्क पब्लिक सर्च, you have to enter the class, after that you can enter the name and you can search yourself also. Next slide. Next 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 next, जैसे आप सपोज करिए डिस्प्लिन सर्च करते हैं क्लास 5 में, तो डिस्प्लिन से स्टार्ट होने वाले वर्ड जितने भी हैं वो सब आपकी पब्लिक सर्च लिस्ट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट क्लास 10। नेक्स्ट स्लाइड।
नेक्स्ट स्लाइड। हॉस्पिटल क्लास 44, जितने भी मेडिकल सर्विसेज हैं, ब्यूटी केयर सर्विसेज हैं, वो क्लास 44 के अंदर आती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, टाइम कम है, आई थिंक बच्चे परेशान हो रहे हैं। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, बस। इंडस्ट्रियल डिजाइन, नेक्स्ट स्लाइड। इंडस्ट्रियल डिजाइन आर ग्रांटेड फॉर शेप, कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्नामेंटल फीचर, एस्थेटिक फीचर। कोई चीज बाहर से कैसे दिखाई दे रही है, उसके आउटर अपीयरेंस को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं थ्रू इंडस्ट्रियल डिजाइन। इट डज नॉट प्रोटेक्ट द टेक्निकल फीचर, इट कैन प्रोटेक्ट ओनली नॉन टेक्निकल फीचर, यू कैन से ऑर्नामेंटल फीचर और एस्थेटिक फीचर। अंडरस्टैंड? अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं लाइव कि इंडस्ट्रियल डिजाइन और पेटेंट में क्या फर्क होता है। इसमें से आवाज आ रही है? ठीक है। और इसमें से आवाज क्यों नहीं आ रही है? वाई वाई? इसमें से भी आवाज आती है पर फोन मिलाना पड़ेगा, राइट? बिकॉज दिस इज ए टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी का क्या हुआ? टेक्नोलॉजी का क्या हुआ? पेटेंट। एंड द आउटर अपीयरेंस, हाउ इट लुक लाइक्स, वी कैन प्रोटेक्ट बाय द इंडस्ट्रियल डिजाइंस, उसकी शेप को। बट कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसमें टेक्निकल फीचर नहीं मिलेंगे, 1% भी नहीं मिलेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव दिस पेन, इसमें टेक्निकल फीचर्स कहां पर हैं? दिस इज ए टेक्निकल फीचर। अंडरस्टैंड? ये किस तरीके से लिखते हैं हम इसके ऊपर, जो इसमें से इंक निकलती है, दिस इज ए टेक्निकल फीचर। इसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं हम, इसकी सिर्फ शेप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हाउ इट लुक लाइक्स। अंडरस्टैंड? इट इज प्रोटेक्टेड बाय द इंडस्ट्रियल डिजाइन ओनली। नेक्स्ट स्लाइड। शेप, कॉन्फ़िगरेशन एंड आउटर अपीयरेंस ओनली। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। कंज्यूमर प्रोडक्ट, किसी भी कार का डिजाइन सेम नहीं होता बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन। किसी भी प्रेशर कुकर का डिजाइन सेम नहीं होता बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन। आप खाना बनाते हैं प्रेशर कुकर पे, आपने आज जाके उसको प्रेशर कुकर को उल्टा कर देना है, खाली को, ओके? और पीछे लिखा होगा पेटेंट नंबर एंड डिजाइन नंबर। पेटेंट नंबर मींस द शेप, उस टेक्नोलॉजी जिसको बनाया गया है, एंड द शेप ऑफ द प्रेशर कुकर इज प्रोटेक्टेड बाय द इंडस्ट्रियल डिजाइन। हैंडल की शेप, आपने कार के काफी सारे डिजाइन देखे होंगे। अब जो नई एक्सयूवी आई है, आपने देखा होगा उसका जो हैंडल होता है ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है। दैट डिजाइन इज आल्सो प्रोटेक्टेड एज ए इंडस्ट्रियल डिजाइन। यानी कि और वो टेक्नोलॉजी है, दैट टेक्नोलॉजी इज प्रोटेक्टेड बाय द पेटेंट एंड द शेप ऑफ द गुड्स इज प्रोटेक्टेड बाय द इंडस्ट्रियल डिजाइन। मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा कि सर टोयोटा वालों की भी बेलिनो आती है, उनकी क्रूजर आती है, डिजाइन तो सेम है। सेम है ना डिजाइन? क्या ब्रांड नेम है टोयोटा का? मैं भूल गया। सेम, ग्लेंजा, सेम मॉडल, उनके बीच में एग्रीमेंट है, तभी उन्होंने सेम डिजाइन कॉपी किया। अंडरस्टैंड? कुछ साल पहले हुंडई ने होंडा सिटी की लाइटें कॉपी कर ली थी, बैक लाइट्स। उनको मार्केट से 25,000 गाड़ी वापस मंगानी पड़ी जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द डिजाइन ऑफ द लाइट्स, कि आप इसको बदलो अदरवाइज आपके ऊपर अगेंस्ट एक्शन ले लिया जाएगा। अंडरस्टैंड? तो मीन्स एक छोटी सी गलती की वजह से उन्होंने सारी गाड़ियां वापस मंगाई अपने शोरूम में और सबको नई लाइट्स अप्लाई की उसके ऊपर विद द डिफरेंट शेप्स। नेक्स्ट स्लाइड। पैकेजिंग कंटेनर को भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं थ्रू इंडस्ट्रियल डिजाइन। नेक्स्ट स्लाइड। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट स्लाइड। टेक्सटाइल एंड ज्वेलरी, जितने भी ज्वेलर्स आते हैं, पीपी ज्वेलर, तनिक ज्वेलर, ये सब अपने डिजाइन को प्रोटेक्ट करते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आते हैं, जितने भी आपने देखा होगा ये बोट के ब्लूटूथ आते हैं या ईयरिंग्स आते हैं, सब प्रोटेक्टेड होते हैं। जितने भी ज्वेलर्स होते हैं, पीपी ज्वेलर, तनिक ज्वेलर्स, ये सब अपने डिजाइन को प्रोटेक्ट करते हैं। आपने सुना होगा कि कटरीना कैफ का लहंगा चांदनी चौक पे 70,000 रुपए का मिल रहा है और वो 7 लाख का था जो उसने पहना था। अब चांदनी चौक पे छापे भी पड़ते हैं, पता आपको ये बात, कि किसने उसके डिजाइन को कॉपी, बिकॉज दिस इज एन आर्ट, दिस इज इंटेलेक्चुअल एसेट्स, उन्होंने उसको बनाया। इसलिए आप देखो हर एक चीज के ऊपर डिजाइन नंबर लिखा होता है, एंड दैट डिजाइन नंबर इज इंडस्ट्रियल डिजाइन नंबर। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। इट मे बी ओरिजिनल, इट मे बी न्यू। सबको पता है ये हाथ और पैर का निशान है, बट यू दिस टाइप ऑफ चेयर इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, यू कैन प्रोटेक्ट बाय द इंडस्ट्रियल डिजाइन। नेक्स्ट स्लाइड। फीचर्स, you can protect the design feature, everything is same, functioning is same, but you can protect the shape of the goods. Next slide. Reynolds, Trimax, this is an example of the industrial design. Next slide.
This is the water bottle and this is protected by the industrial design. Next slide. Next. Next. These all are the example of the industrial design. Next slide. Next. इसमें जो ड्यूरेशन होती है, you will get a rights on for 15 years. But after 15 years, anybody can use your design. Nokia 1100 है किसी के पास? नहीं ना, because design खत्म हो जाता है after 10 to 15 years. Understand? Next slide. Next. 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 Yes. Single product, multiple type of IPR protection. This device is used in the Elantamol, Dyson. आपने देखो, they people are doing a very good marketing in the Elantamol. सब जगह Dyson ही Dyson नजर आ रहा है, कहीं पर air purifier है, कहीं पर कुछ है. You have to insert your hand in this device. It will be automatically sanitized and dried. The technology used in this device is protected by the patent rights, and the shape of the goods is protected by the design rights. Brand name of the Dyson is protected by the trademark protection. Understand? And the literature material is used for the publicity is protected by the copyright protection. One single product but multiple type of IPR protection on a single thing. Understand? Next slide. Copyright. This is the last slide. Copyright are granted for, next slide, musical work, artistic work, literary work, dramatic work. आपने कोई पोएम लिखी, आपने कोई कविता लिखी, आपने कोई गाना गाया. You can protect by the, next slide. Next. You can protect by the copyright protection. Next slide. Next. Next. You will get a two type of rights, moral rights and economic rights. Moral rights means नैतिक अधिकार, means you have to mention their name in every activity which is you participated to create that work. मान लीजिए आपने कोई ड्राइंग बनाई तो आपका नाम देना मैंडेटरी है, आपने कोई फिल्म में काम किया तो आपका नाम देना मैंडेटरी है, किसी भी सॉन्ग में, किसी भी म्यूजिक में. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट. 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 This is the geographical indication. Geographical indication basically popular to the particular region, like फुलकारी. फुलकारी के ऊपर कोई एक पर्सन मोनोपोली राइट्स क्लेम नहीं कर सकता. दार्जिलिंग टी, द राइट्स बिलोंग्स टू पर्टिकुलर दार्जिलिंग एरिया, not to the single entity. It is granted to the group of the cluster, not to the single person. So this is called a combined rights. Next slide. Cluster rights. Next slide. Next. Next. Yes. Trade secrets. Do you have any secrets? Do you have any secrets? No? किसने नो बोला? आज सामने आपके सीक्रेट्स निकालते हैं. Do you have any secrets? Yes or no? Yes. How you guard your secrets? How you guard your secrets? What is the criteria? यहां पर ऐसे कोई दो फ्रेंड्स हैं जो कह सके we are best friend, we can trust each other blindly. Raise your hand. Very good. आ जाओ आगे. आ जाओ दोनों आगे आ जाओ. आज इनकी फ्रेंडशिप का टेस्ट लिया जाएगा. फ्रेंडशिप टेस्ट. तीनों आ जाओ. तीन हाथ थे. The secret is the conversation between two people which trust each other blindly. और भी है कोई तीसरा दोस्त आपका, उसको बुला सकते हो आप. हैं? दो ही हैं. गुड. एक और आ जाओ बीच में. विलन भी आ जाओ साथ में एक आधा जो इनकी दोस्ती तोड़ेगा. आ जाओ. एनीवन प्लीज कम. क्या हुआ? खड़े रहिए, अभी आप चेक करेंगे. लैब कोट पहन लो, पहन लो. यस. The trade secrets, the secret used for the trade. Understand? The undisclosed information you can share with that person whom you can trust blindly. Understand? In our country, India specifically, non-disclosure agreement or the Labor Law Act. आ जाओ बहुत स्मार्ट लग रहे हो आप. आ जाओ. गुड. आप भी आ जाओ मिस्टर सिंह. आ जाओ. आ जाओ. What is your name? विकास. What is your name? राहुल. आपको एक दूसरे पे पूरा विश्वास है? कितना विश्वास है? सोच के बोलना. आपका नाम क्या है? हरमनप्रीत सिंह. हैं? हरमनप्रीत सिंह. हरमनप्रीत सिंह जी खड़े जो. आपका नाम क्या है? विकास. राहुल. विकास, राहुल है. नॉर्मल. राहुल का नाम खराब होगा आज, मेरा ही खराब होगा. कोई बात नहीं. मान लो विकास जी की कंपनी है XYZ.
फार्मास्यूटिकल कंपनी है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये। इनके 50 क्लाइंट हैं इंटरनेशनल और उनमें से किसी एक को मिलने जा रहे हैं। ये इतना विश्वास करते हैं, इन्होंने राहुल को भी आज तक कुछ नहीं बताया कि मेरे 50 क्लाइंट कंपनी में इनके एम्प्लॉई हैं राहुल, क्योंकि सबसे क्लोज है, क्योंकि इनके ऊपर ये सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। अंडरस्टैंड। और ये हरमनप्रीत जी राहुल जी के नीचे हैं, ये भी इनके क्लोज है, लेकिन पूरा ट्रस्ट नहीं है। नहीं है ना? नहीं है ना? नहीं है। ओके, पूरा ट्रस्ट नहीं है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट, दिस इज कॉल्ड ए ट्रेड सीक्रेट्स। नेक्स्ट स्लाइड। अब ट्रेड सीक्रेट किस किस का कर सकते हैं? जिस चीज का पेटेंट फाइल नहीं होता। अंडरस्टैंड। जैसे मैंने आपको बताया कुछ चीजें ऐसी, अब जो क्लाइंट की डिटेल्स है उसका आप पेटेंट तो फाइल नहीं कर सकते, ना कॉपीराइट फाइल कर सकते हो, तो यू कैन प्रोटेक्ट बाय द दिस एग्रीमेंट ओनली। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है वाइपो, जो हर साल फ्री डिप्लोमा कराती है बच्चों के लिए। www.wipo.int, कोर्स नेम 101। अब ये 4 कोर्सेज कराती है, 101, 102, 103 एंड 104। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस कोर्स। स्टडी मटेरियल आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगा, वहीं से आपको एग्जाम देने हैं। अगर आपके 60% मार्क्स आए, यू विल गेट ए सर्टिफिकेट फ्रॉम वाइपो। अंडरस्टैंड। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें आप नकल भी मार सकते हो। अंडरस्टैंड, कि आप गूगल से भी देख सकते हो, बट इट इज बेस्ड ऑन दी केस स्टडीज। वो आपसे केस पूछेंगे, जैसे मैंने आपसे केस स्टडी समझाई कि इसके आप किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हो। आप आईफोन को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हो, या किसी फोन को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हो, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारत सरकार हर साल 120 वुमेन्स को ट्रेन करता है इन द फील्ड ऑफ IPR, हाउ टू राइट ए पेटेंट एप्लीकेशन, हाउ टू ड्राफ्ट ए पेटेंट एप्लीकेशन। उसमें फेलोशिप और स्कॉलरशिप भी दी जाती है बच्चों को, M.Pharm, M.Tech, PhD और MSc स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू। Any question? Any question? No? And please clap for Vikas and Rahul. And for Harmanpreet Singh. Harmanpreet Singh. Very good. And even though the students from masters are doing the research and CR of the all classes, they will interact with the sir. And the students whose exam is going on, they can move to their particular exams.